आवाज में मजा नहीं आया. गुड इवनिंग. यस, ये हुई ना बात. So we will be starting our session in next 10 minutes. But before that, we'll have some informal networking sort of thing. इसमें हम लोग थोड़ा बहुत introduction है और ये सब करेंगे. Because for the next 2 days हम सब साथ में रहेंगे तो we should know each other. Basically connect is for to connect with new friends and new members. आप अपने दोस्तों के साथ में रहोगे तो कोई नया कनेक्शन नहीं बन पाएगा. So sit with someone who is new, who is not known to you from different place. Okay? Okay, can you play a game? एक गेम खेले क्या? अच्छा, किसको नहीं खेलना हो हाथ ऊपर करे. Okay, so we have Nikita who will be the host. So I would request Nikita, please come on stage and engage the audience, please. Over to you, Nikita. Wow, that's some energy. I mean, it is fantastic to see कि हम सब youth wing से हैं और youth wing से ये energy expected नहीं है. So let's do this. All the ladies in the room, can we make some noise on the count of 3? 1, 2, 3. I hear you guys. All the handsome hunks, can we all make some noise on the count of 3? Let's do it. 1, 2, 3. Oh, wow. All right. I also see ladies cheering when we say handsome hunks. That is the spirit, girls. That is the spirit. Okay. So, like you all know, I'm your host for the day. My name is Nikita. And I'm going to be around. आप लोग मुझे आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों भी देखेंगे. तो आप लोग मुझे देखने की आदत डाल लीजिए. My name is Nikita Chaturvedi. This is going to be interesting as we start with a very interesting game. We all know someone really special is going to join us in no time. Someone extremely versatile and insightful is going to join us in no time. But before that, it's time we talk a little, we chat a little, and I pull some legs. We play an interesting game. All right? So let's begin. हमारे पास chance नहीं होता, but do we watch TV? All of us? Sometimes. कभी तो देखी होगी. कभी तो definitely देखी होगी, है ना? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो टीवी देखते समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है? प्लीज़ बता दीजिए. बीवी? आई एम सॉरी. वाज दैट बीवी? हु इज? ओके सर, बीवी है इधर? नहीं. अच्छा, आपने बोला बट बीवी है. जिसने भी सुना है प्लीज कॉल करके बता दीजिएगा. भाभी जी को मालूम होना चाहिए क्या बातें चल रही है ना. चलो, तो एक काम करते हैं. जैसे आप सभी ने बोला, एडवर्टाइजमेंट्स इज समथिंग दैट स्टॉप्स अस, बोर कर देते हैं. बट इधर आपको बोर नहीं करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि मैं आप सभी से कुछ टैगलाइंस पूछने जा रही हूँ और आप लोगों को मुझे बताना है कि ये टैगलाइंस कौन से ब्रांड की हैं. ओके, दिस इज गोइंग टू बी सिंपल. ओनली वन रूल, वी डू नॉट गूगल. Okay, please do not Google. Simple. Let's begin. All right. Our first tagline is जो खाए खो जाए. जो खाए खो जाए. जो खाए खो जाए. Yes. It's okay. आप लोग बोल सकते हो. Melody के लिए कितने answers हैं? Please raise your hand. Melody के लिए how many votes for Melody? Alpalibe. Okay. Wow. Melody के लिए कितने votes? Okay, fantastic. Let's give a huge round of applause for Melody. क्योंकि Melody इतनी चॉकलेटी क्यों है? It's not Melody, guys. It's not Melody. How many votes for Alpalibe? No. You do not want claps for you guys. 5-star is the right answer. So whoever said 5-star, let's give a huge round of applause to them. Okay. All right. Let's head to the next one. This is going to get a little simpler. Okay. Let's try. Taste the thunder. Very good. Let's try the next one. Taste of India. Okay. Let's try this one. Okay. हमारा next one जो है थोड़ा technically savvy है. Let's try if आप लोग पहचान पाते हैं या नहीं. Think different. Think different. आप 2 सेकेंड में 4 जवाब बदल चुके हैं. एक जवाब की उम्मीद है.
I don't want to get personal. No personal stuff. Apple is the right answer. Let's give a huge round of applause for the very gorgeous lady. Very well done. All right. For all the men in the house, let's try this one. Smell like a man. Smell like a man. No, Wildstone is the wrong answer. Axe is also the wrong answer. Park Avenue is the wrong answer. बता दो और कुछ है बताते जाओ आप. Old Spice is the right answer. Fantastic. All right. Again, for all the men in the house, let's try this one. बड़े आराम से. मुझे कैसे पता होगा आप लोग बता रहे हैं. Okay. I believe you. All right. Let's try the next one. असली नमक देश का नमक. Very well done. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. Okay. Taste भी health भी. Taste of India भी अमूल, taste भी health भी अमूल. Taste भी health भी. अच्छा, settle down in the meanwhile, everyone. Thank you so much for joining us. Please be seated. चलो hint देती हूँ, hint देते हैं. 2 मिनट में क्या बनता है? Maggi is the right answer. All right, let's have the last one. Last one देखते हैं. Have a break, have a. Fantastic. All right. So now I see that we have a lot of energy. तो एक काम करते हैं ये energy अभी बचा के रखते हैं. But फिलहाल, like he said, we have to make sure that we connect because it is Jito Connect 2025. So let's connect. Like he said, informal एक आप लोग एक दूसरे को introduction दे दो. Sit with people you have not known abhi tak. It'll be nice for your business, for your future as well. So let's see. And in no time, we have a special guest joining us. So stay tuned. Be seated. Please connect with each other. You're free to do so. In fact, you're here to do so. So let's connect with each other. Say hi to whoever is next to you. Let's handshake. All right. Let's handshake to whoever is next to you. If you know them, great. If you do not know them, it's fine. Let's just handshake. Okay. Hi, hello everyone. In the meanwhile, whoever's joining us, please be seated. Thank you so much for being a part of this. Please be seated. We have our speaker joining us in no time. Whoever's joining us, please be seated. This is going to get really interesting in some time. And ladies and gentlemen, we'll also quickly describe you the agenda for today. As we all know, we have a very special person joining us in no time. A trailblazer joining us in no time. After that session, after our first session, we have someone to tickle all your laughing bones, all right? We have Akash Gupta joining us right here in no time as well. So stay tuned, stay energetic. Everyone, please be seated, join us, connect with people, know each other. And I'm going to announce for our special speaker in no time. Stay connected. And please be seated, everyone. And if there's anyone who's wanting to join, please keep joining us. We'll be starting in next 5 minutes. Are we all excited? Yes or no? Are we all excited for both the session? Pratham Mittal and Akash Gupta. Yes या no? Okay. RM zone से कितने लोग आए हैं? Make some noise. Mumbai zone, TNAPTS, KKG. क्या बात है? KKG में काफी ज्यादा क्राउड है. Let's see. गुजरात. Oh my God. खतरनाक. Okay. So let's play a game. ठीक है? चलो आप लोग सिलेक्ट करो. निकिता गेम खिलाए कि मैं गेम खिलाऊं? यार ये गलत है, यार ये गलत है. प्लीज ऐसा नहीं. अब अपना साथ ज्यादा पुराना है. हाँ, निकिता तो आ जाइए. Okay, handing over to Nikita, please. All right, guys, we are back with another one. Thank you so much for choosing me. Okay, let's begin. For everyone who's just joined, please be seated. Thank you so much for joining us. Our speaker will be joining us in no time. और चलिए हम लोग जल्द से हमारे दूसरे गेम की तरफ मुड़ जाते हैं. This is going to get really interesting. हम लोग
एडवर्टाइजमेंट के टैगलाइंस कवर कर चुके हैं, अब बारी आ चुकी है कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स की, ठीक है? तो मैं कुछ डायलॉग्स बोलने वाली हूँ और आप लोगों को पहचानना है कि किस एक्टर या एक्ट्रेस ने बोले हैं। अब ध्यान रखिए कि आपको कैरेक्टर का नाम नहीं बताना है, ठीक है? एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताना है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। हमारा पहला डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। कैरेक्टर का नाम नहीं बताइए। संजय दत्त इज द राइट आंसर, फैंटास्टिक। एंड लाइक वी ऑल नो, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल, तो आप प्लीज अपना हाथ मत उठाओ। आई नो, आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू एज वेल। तो आप लोग जवाब दो बस जोर से। वी वॉन्ट एनर्जी, राइट? ओके, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट वन। कितने आदमी थे? नो नो नो। कितने आदमी थे? लेट्स हेड टू द बैक, देखते हैं कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। सही जवाब मिल सकते हैं या नहीं? एक्टर का, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। अमजद खान। अमजद खान इज द राइट आंसर। गाइस, मेक श्योर कि आप लोग एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताएं, कैरेक्टर या मूवी का नहीं, ठीक है? चलिए, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट वन। उसका तो ना बैड लक ही खराब है। उसका तो ना बैड लक ही खराब है। नो। हिंट देती हूँ, हु इज द परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड? Amir Khan is the right answer. Fantastic. All right. The next one is really simple. Let's try. Parampara Pratishtha Anusha. All right. Okay. Simple one. Another one. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Very good. Okay. हमारी छोरियां छोरों से कम है के? Very good. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? Okay. We'd like to hear it from him. Yes, चलो, let's hear it from him. Oh wow, अच्छा, मजा ही आ जाएगा। बॉटल खुल चुकी है, बट अभी पानी की बॉटल, गाइस, पानी की बॉटल। ओके, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? यार, लेट अस ऑल गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एकदम कैरेक्टर में घुस के क्या परफॉर्मेंस दिया है, फैंटास्टिक। ओह, वी हैव अनदर वन। ऑलराइट, योगेश, कैन वी, योगेश इज अराउंड? ओह, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। वी आर गोइंग, ओके, नेक्स्ट डायलॉग वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। ओके, आप लोग को गेस करना है, ये एक्टिंग करके बताएंगे, आप लोग गेस करना कौन सा है। कॉमेडी हो जाएगी, एक्टिंग नहीं होगी। रात को मिलने वाला। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पर साला इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। ओके, तालियां बज गई हैं, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन सा एक्टर है। सनी देओल? ओके, ऑलराइट, सनी देओल इट इज। ऑलराइट, लेट्स हेड टू द नेक्स्ट वन। दोस्ती का एक ही उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। है सलमान? हाँ, ऑलराइट, टेल मी दिस वन। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वेरी वेल डन। चलिए, ये वाला बता दीजिए। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। मूवी का नाम बताएंगे आप? एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। ओके, ओम शांति ओम मूवी से नहीं, वो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात पे भरोसा करना चाहती हूँ अभी। शाहरुख खान के लिए कितने वोट्स हैं? अच्छा, हाँ, आपकी एक्टिंग देख के मालूम चल गया। ऑलराइट, हाउ मेनी वोट्स फॉर रणबीर कपूर? कॉन्फिडेंस देखिए सर की आंखों में। गलत जवाब देते समय कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। सही जवाब शाहरुख खान है। वेरी वेल डन। ऑलराइट, लेट्स हेड टू द लास्ट वन गाइस। लास्ट वन, लेट्स ट्राई दिस। हाउस द जोश? वो तो पता है, एक्टर का नाम बताओ। ओके,
Sir, you're married? You're married. Wow. Are we headed to a record? या 2 काफी होंगी? अच्छा, गर्लफ्रेंड का शौक है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। हंसमुख बिहेवियर है, अच्छा। ओह वाओ, हाँ, स्माइल तो अच्छी है यार, हैंड्स डाउन, ठीक है। ऑलराइट, सो ये उनमें से हैं कि जब इनका बर्थडे आता होगा ये अपनी वाइफ को हैप्पी बर्थडे बोलते होंगे, और जब वाइफ का बर्थडे आता होगा तो अपने लिए गिफ्ट लेके आके उसको गिफ्ट दे देते होंगे आइडियली, और बाद में बोलते थे क्या तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना, कोई बात नहीं मैं इस्तेमाल कर लूँगा, नहीं। Fantastic. All right, so how's the जोश everyone? अब तो बताओ यार, हाय है या नहीं, वो तो सही जवाब मालूम चल गया। अब बताओ हाउस द जोश? नो, अभी अचानक से जोश थोड़ा लो हो गया है, तो लेट्स ट्राई अगेन। हाउस द जोश? Fantastic. With this, ladies and gentlemen, I believe we are all set to welcome. I'll have to quickly connect and come back to see if we are ready. Now, I'm going to find a different way जिससे आप सबको मालूम चलेगा कि दूसरे लोग क्या करते हैं, ठीक है? How are they connected? What is their business all about? And we are going to do it in a very simple, in an easy way. All right? So, let me move around. Let's see here. Can I see your watch, sir? Impressive. You're wearing Guess ka watch, which is also nice. And your watch is? Oh, sir, can we all put a huge round of applause for him? Can we please join us here? Please, can you please be here, please? All right. Ladies and gentlemen, let's give it up for Vinay Singhvi. Vinay Singhvi. Vinay. All right. Vinay, we're traveling from Gujarat? Yes. I saw you making cheers, so I was guessing. All right. So Vinay, we see you wearing a Rolex, right? Yes. You know who to connect. Okay. All right. So I want to know that what do you do for a living? For a living, we manufacture lab-grown diamond jewelries. And we have a in-house process from diamond manufacturing to jewelry manufacturing. And we provide B2B and B2B service to all the clients over India. Oh my God. थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, ज्वेलरी के लिए? All right. All right, thank you so much. It's time that we welcome, we put our hands together for the one we all have been patiently waiting for. Can we all give a huge round of applause to none other than Pratham Mittal, everyone. Can we all make some noise? Ladies and gentlemen, he's finally here. And it's time that we hear it from him, all right? But before that, please be seated, sir. Thank you so much for joining us in this beautiful session. This is our first session for Youth Wing, and we have someone who's a trailblazer. We have a lot of things to say, a lot of adjectives for him. But for now, ladies and gentlemen, it's time that we quickly introduce Shama to all of you. Shama, can we please have you? Let's introduce Shama, ladies and gentlemen. We all know her. Let's give a huge round of applause for the very gorgeous lady. And let's know a little more about Masters Union from the very gorgeous lady, Shama. And then we'll quickly head to the one we all have been patiently waiting to listen from. We have Pratham Mittal in the house, and I want you all to give a huge round of applause for him once again. Everyone, let's give it up for Pratham Mittal. Louder can we make it? On the count of 3. 1, 2, 3. Fantastic. All right. Over to you, Shama. Jai Janendra, everyone. Is everyone enjoying Jeeto Connect 2025? Yes. Okay, so let's hear from our chairperson first, Rajat Hardy, and start the session. हाय, गुड इवनिंग, जय जितेंद्र। क्या है, यूथ जोश दिख नहीं रहा है? कहाँ से आए हैं? चेन्नई, बैंगलोर, जयपुर, मुंबई,
वापी, गुजरात, रायपुर. तुम लोग पहले बैठो भाई. So guys, firstly a very warm welcome to you all. This marks the beginning of our youth journey at Jito Connect. So a big round of applause to all of you all for having traveled to Hyderabad. कैसा लग रहा है जीटो कनेक्ट आप सबको? सारे स्टॉल घूम ले अभी तक या नहीं? So to add more fun, to add more knowledge, to add more bonding and to give you more takeaways, we have curated lots of special sessions only for the youth, by the youth, for the youth. So in the presence of our Secretary in charge Shripal ji and our Director in charge Praveen ji, so please give them a huge round of applause for being instrumental in having all of this organized for us. So firstly, respect to my core team, led by myself, then Nikunj, Suchek, Kavita, Devin, our money man, जिसकी आप सबको जरूरत पड़ती है, प्रखर, Manish bhai, Anushri, and Yashasvi, of course, she's just traveling, and the entire National Working Committee of Jito Youth Wing. All of us in these grey color blazers, we are a part of the National Working Committee of the Jito Youth Wing. So firstly, let's start this session and let's begin. Oh yeah, there is some addition that we want to give you all. So there is a short AV that I would like you all to see. So over to the AV and then we'll speak. So guys, this Diwali, we are all going to go to Bali for a Jito International Summit with Jito International Wing, with Jito Sports, Jito JBN, and of course, Jito Youth Wing. There's no fun without youth, right? Yes. So the Bali itinerary is going to be 2 days of an official trip of the summit. And the remaining 2 days, firstly, a very warm welcome to our chairman of Jito Apex, Prithviraj Ji Kotari. So yeah, coming back to Bali, 2 days we'll be having our official summit and 2 days we'll be having an extended trip only for the youth. So there's a lot of youth itinerary being planned which will be launched today evening. So I hope to see you all. We have a very limited slot at Jito International Summit Bali. So the registration links will be soon up and we look forward to a lot of fun. So thank you. With that, I hand over the mic to Shama. जय जिनेंद्र एवरीवन अगेन. सो आप लोगों में से कितने लोग एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो? हाउ मेनी ऑफ अस हियर हैव सीन अ ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस व्हेन वी वर ग्रोइंग अप? और ओके वाओ, हम में से कितने लोगों को ऐसा लगा है कि हमारे पापा के दादा के बिजनेस में इनोवेशन तो हो ही नहीं सकता, हम डिसरप्शन तो ला ही नहीं सकते, जो हमें बोला गया है वो हमें करना है एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट? नो वन, एवरीवन थिंक्स कि हमने बहुत सारा डिसरप्शन ला दिया है हमारे ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड में.
Exactly. Now just imagine that you take the same family business, but instead of joining the shop या आपका factory या आपका office, आप एक पूरा completely disruptive version बना लेते हो उस चीज़ का, which is very forward thinking, something जो दुनिया ने आज तक कभी देखा ही नहीं है. That's exactly what Pratham Mittal ji has done here. Masters Union and TETR, these are two organizations. Masters Union में आप 8 डिफरेंट सिटीज़ इंडिया में जाके पढ़ सकते हो और टेटर में आप 8 डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बिजनेस सीख सकते हो. सो दिस इज समथिंग दैट ही हैज़ बिल्ट एंड बिफोर वी हियर फ्रॉम हिम लेट्स सी एन AV वेयर वी सी मोर अबाउट मास्टर्स यूनियन. Question. Will cramming theory and listening to lecture after lecture really prepare you for the true business world? Here's a hint. So, what will? Think about it. If medical students are trained by real doctors in real hospitals with real patients, Then why should learning business be any different? this is Masters Union, a next generation business school where learning happens both inside and outside the classroom. Where classes are taught by CXOs, unicorn founders, award-winning professors, and even members of the parliament. So how is Masters Union different from every other school or university? It's simple. We learn business by doing business. Let me unpack that for you. In term 1, we apply what we learn in class by building our own e-commerce stores through the drop shipping challenge. Over here, we know that old textbooks don't teach modern marketing. So, we learn it by running our own social channels that run up to hundreds or even thousands of followers. We also learn the art of pitching by crafting and presenting our own TEDx talks. He's talking about how we learn finance by running our own 5 crore fund where we invest in startups, equities and even in real estate. From dosa chips to motorcycle service solutions, pharmaceutical supply chains to Golgappa franchisees. Some businesses work, some don't. But learning by doing, That always works. our professors are industry leaders and our future recruiters. We learn fundraising from India's top VCs, navigating complexity from a NASA professor, and leading teams from an Indian Army veteran. High class. Sound won't ठीक आ रही है ना तुम्हारे को? ब्रांडेड कंटेंट वायरल बनाना इज लाइक द लास्ट थिंग यू शुड डू. You are not a leader if you don't upset a few people sometimes. When it comes to entrepreneurship, speed over anything else. Do you hire MBA students? Absolutely. My own CEO is an MBA. And the list goes on. Concepts like design thinking aren't taught through presentations, but through the process of designing an actual AK-47. So how's that for hands-on learning? This innovative teaching method has enabled our seniors to crack top jobs like these in companies like Microsoft, Bain, BCG, and several other A-listers. Some of our friends have also gone on to create successful startups, raising millions of dollars in funding. And with classmates that you can network, partner, and collaborate with, and professors who are more than just your teachers, you never know when your next billion-dollar idea strikes. And where does a B school like this belong? In the middle of an award-winning business park, right next to the recruiters themselves. So stop waiting to begin And start learning. by doing. Right here at Masters Union. I'll see you on the other side. So give a huge round of applause for Pratham Mittal. You all have seen what entrepreneurship does, right? And we have a frugal entrepreneur amongst us who started his career 45 years ago and today is known as the bullion king of the country. He is our dearest kaka, our very own Prithviraj Ji Kothari, the chairman of G2 Apex. थैंक यू रजत. सभी को सादर जय जिनेंद्र. मेरी लैंग्वेज में बोलूँ ना? देखो क्या है ना, पैसा नसीब से बनता है. नहीं तो हम लोग 10th पास भी नहीं हैं और आज 450 आदमी काम करते हैं. बट एक बात मैं यकीन से कहता हूँ कि हम लोग जब दुकान चलाते थे तो पेड़ी के जैसे चलाते थे. पेड़ी होती है ना, गादी पे बैठते हैं. फिर नई जनरेशन आई, हमारी 4 जनरेशन हम लोग के साथ में है. तो नेक्स्ट जनरेशन आई, MBA करके लंदन से आई, तो वो चेंज किया. तो हम लोग फिर थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए.
पहले क्या एक आदमी को 10 काम देते थे, उसको सब काम करना रहता था, फिर काम डिवाइड करते रह गए, फिर और पढ़ के और बच्चे भतीजे 9 भतीजे 10 भतीजे हैं, सब पढ़ के आए तो पूरा सिस्टम चेंज किया, कॉर्पोरेट कर दिया। कॉर्पोरेट किया तो हम लोग भी चेंज हो गए और फिर नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते लग गए। वी आर इन द इंडस्ट्री लास्ट 47 ईयर्स। जवेरी बाज़ार के अंदर 47 साल हो गया है, तब जाके क्या बोलते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में हो सकता है। कहने का मतलब है अगर आदमी कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और मैं इसके लिए कह रहा था कि जो नई जनरेशन आती है ना, उससे हमको सीखने को मिलता है। हम लोग ने कहाँ गलती की थी वो उसको रेक्टिफाई करते हैं कि आप लोग पहले ये गलती करते थे। पहले जब ऐसा होता था कि अपन हमारे पिताजी को बोल भी नहीं सकते थे कि कभी ऊपर से एक पड़ जाए तो वो भी पता नहीं चलेगा। पर अब टाइम चेंज हो गया है, लोग पढ़ के आए, सिस्टम आया है, सिस्टम आने के साथ में टेक्नोलॉजी आ गई है। आप यकीन करोगे मैं 97 से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हूँ। लोगों को सैटरडे बुलाता था जब वो वी सेट लगाते थे, आपको पता होगा छतरी लगती थी, तो उस छतरी के टाइम से हम लोग छतरी लगा के इंटरनेशनल प्राइज़ देखते थे और वो प्राइज़ को फिर लोगों को देते थे। मेरा ऐसा मानना है कि जितने ज़्यादा लोग को आप ट्रेन करोगे उतनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी। लोग ज़्यादा आएंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी, लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी तो नए नए लोग आएंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जवेरी बाज़ार में लंदन बुलियन, जॉनसन मैथ्यूज, स्विस, ये लोग आके यहाँ पे खड़ा रहते थे, यहाँ पे जवेरी बाज़ार में खड़ा रहते थे। भाव क्या खुल रहा है, क्योंकि लंदन अपने बाद में खुलता था, पहले बॉम्बे खुलता था फिर लंदन खुलता था। यहाँ से भाव वो लोग वहाँ देते थे। ऑप्शन जो ट्रेडिंग आप देख रहे हो ये अपना पहले इंडिया में चलता था। ये मैं 65 के पहले की बात कर रहा हूँ, 1965 के पहले की। यहाँ पे इसको धोखा बोलते थे, बैरियर। वो लोग ने उसी सिस्टम को एडॉप्ट करके फॉरेन के अंदर बैंक के साथ में इंट्रोड्यूस किया ऑप्शन ट्रेडिंग, जो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये सब हमारी देन है। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, वो लोग ने टेक्नोलॉजी के साथ में, बैंकर के साथ में फिर एडॉप्ट होते गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न करने के जैसी है यूथ से। और आज का यूथ खाली सैटरडे संडे को छोड़ दो, बाकी दिन 5 दिन बहुत बढ़िया काम करता है। वो वीकेंड में तो बाप रे बाप, वीकेंड और फ्राइडे नाइट, सॉरी फ्राइडे नाइट रही। हम लोग यूथ के लिए जीतो एज एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं। जीतो यूथ एंटरप्रेनर, जस्ट लाइक अ YPO और EO के जैसा है। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 8 कंपनी को ओपन कर लिया है। ट्रेनिंग सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट सेशन हम लोग बॉम्बे में किया था 11 अप्रैल को। उसमें 103 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 90 लोग ने इंटरव्यू दिया। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 25 सितंबर को सेकंड ट्रेनिंग सेशन हमने दिल्ली में रखा था, जहाँ पे 100-125 लोग थे। इस करने का मतलब है कि हमारे यूथ खुद की एक अलग ही एंटिटी बॉडी बने, जिसकी मेंबरशिप फ़ी अलग है, बाय द इन्विटेशन है। अगर फादर बिजनेस से है तो उसका 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अगर खुद के बिजनेस से है तो 15 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए। और हम लोग इसमें हर जगह पे अभी स्प्रेड कर रहे हैं। अभी बेंगलोर, चेन्नई, पूना, अहमदाबाद सब जगह पे कर रहे हैं कि एक अपने यूथ की एक बॉन्डिंग हो जाए। और करने का है कि हमारे पास यूथ के पास में बहुत से आइडियाज़ है, नई नई टेक्नोलॉजी है। और हम लोग चाहे एज ए यूथ अपन पूरी दुनिया को हिला सकते, इतनी हमारे में ताकत है। बट हम लोग ने वो सीमित करके रखा हुआ है। सेकेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप जो फर्स्ट 70 हमने लिस्ट सिलेक्ट किया है उसकी अगर आप लिस्ट देखोगे कोठारी जी, तो लिस्ट में कोई ऐसा इंडस्ट्री का बच्चा नहीं है जो इसमें नहीं जोड़ा, चाहे मोतीलाल ओसवाल की डॉटर होए, चाहे सेलो वाला प्रदीप भाई का लड़का होए, या कोई राकेश कटोदिया का लड़का होए। हर एक इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री की राउंड टेबल हो गए, जैसे बैठे वैसे अलग अलग इंडस्ट्री से होंगे। और हमारा जीतो के अंदर कॉमन लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसके लिए हम लोग उसको क्रॉस बॉर्डर रखा है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को नहीं उस टेबल पे जाना है, तो भी हमने छूट दिया है।
सेकंड हम एजुकेशन के मामले में कर रहे हैं, 2 मिनट ही लूँगा। सेकंड हम एक एजुकेशन के कर रहे हैं, जीतो यूथ जीतो एजुकेशनल ओलंपियाड। हम देखते हैं कि हम लोग बिजनेस के अंदर टॉप पे है, बट एकदम बिजनेस में है बट टॉप पे नहीं है। जैसे हम डीन नहीं हैं, बड़े एकदम टॉप लेवल पे नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो हम लोग ने बैठ के बहुत विचार किया कि हम लोग को चाहिए कि हम 12th के बाद में देखते हैं कि बच्चे को कहाँ जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या कहाँ पे भी जाना है, 12th के बाद में हम लोग देखते हैं। हम लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं ओलंपियाड करके 5-10 हज़ार बच्चों में से फर्स्ट ईयर 50 बच्चे को हम एडॉप्ट करेंगे, एट द स्टैंडर्ड ऑफ 6 से स्टार्ट करेंगे। उसका टिल एंड तक एजुकेशन का खर्चा पूरा जीतो करेगा। तो हर साल 50 बच्चे हम ऐसे क्रीम बच्चों को एडॉप्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये बच्चा कौन सी डायरेक्शन में जाना वाला है। आइदर उसको स्पोर्ट्स में जाना है, आइदर उसको एक्टर बनना है, या प्रोफेसर बनना है, या रिसर्चर बनना है, जो भी बनना है उसको अपने को पहले से पता चलेगा। और हम पूरा 50 हर साल 50-50 बच्चों को उसको साथ में जोड़ के और उसका एक पूरा उसकी फिर पढ़ाई का उसके लिए देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसमें हमारे संस्कार भी आ जाएंगे, हमारे जो भी एथिक्स है वो भी उसके अंदर आ जाएंगे और एंड तक वो उसके साथ में रहेगा। तो हम लोग ये 2 अभी बहुत से जल्दी कर रहे हैं। और थर्ड है JPL जीतो प्रीमियर लीग, बहुत जल्दी इज़ अ रेप्लिका ऑफ IPL, जो 10 साल के लिए ऑनर के पास में टीम रहेगी। उस टीम के अंदर हम ऑक्शन करेंगे, प्लेयर का भी ऑक्शन करेंगे, प्लेयर को पैसा भी देंगे और एक स्टार प्लेयर होगा या एक स्टार एक्टर एक्ट्रेस होगा, उसको ऑन करके उस टीम के ऑनर को देंगे और पूरी 10 साल तक टीम रहेगी। सेम IPL के जैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को खेलने जाएंगे, दोनों स्टेट साइड में, और एक्टर रहने से थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। और हर बच्चों को, बहुत से हमारे बच्चे देखे क्रिकेट के अंदर बहुत टैलेंट है बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आगे आने के लिए। बॉम्बे इंडियन की मैं बात करूँ तो 5 बच्चे हमारे खेलते हैं बॉम्बे इंडियन के अंदर, 26 के बाद में है वो। पर इस तरह हमारे बच्चे क्यों नहीं आगे आ सकते? जैनों के बच्चे, क्रिकेट के अंदर बहुत टैलेंट है, पैसा भी है, हर चीज़ है। तो हम लोग JPL स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी से इसकी शुभारंभ हो जाएगी। आप लोग को मैं चाहिए कि आपके कोई भी होए, फर्स्ट हम क्रिकेट से स्टार्ट करें, उसके बाद में हम दूसरे भी स्पोर्ट्स को उसको ऐड ऑन करते रहेंगे। एक बार फिर से मित्तल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। देखिए अब मैं बोलना नीचे आ जाना, इसके बाद में मेरा प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं बोलने लग गया तो 5 घंटा तक लोग उठेंगे भी नहीं। थैंक यू। Thank you to our dearest Kaka, who is also the chairman of Jito Apex. Youth Apex core team, please join. So thank you so much. सबको वेलकम करता हूं जीतो कनेक्ट 2025 में। Actually, I was given application to become a chairman of Youth Wing, but they found that I am 2 years older. 1 year, okay, just 1 year. ठीक है, चलिए सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप लोग अपना समय निकाल के हैदराबाद आए हैं। और कल भी अपना एक पावर पैक सेशन स्काई का रजत भाई ने स्पेशली ऑर्गेनाइज किया है आप सबके लिए, सूर्य कुमार यादव का। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन देयर। थैंक यू सो मच। Thank you, Rohit ji. With that, the session that we all are here for. So let's hear it for Pratham. All right. Hello, everybody. Can you hear me? Okay, awesome. Jito has so many wings. Have you ever counted? 2 wings and 14 projects. 20 and how many chapters? So you have 100 different organizations within Jito, maybe even more. 3,000 post holders. 3,000 post holders, but I have one complaint. Okay. I have one very large complaint from everybody here, that there is no Jito University. I think with the community, इतनी बड़ी community है, इतना बड़ा हमारा group है, यदि हमारी यूनिवर्सिटी ना हो तो ये तो हम छोड़ रहे हैं बिल्कुल इस चीज़ को। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर तक एक जीतो यूनिवर्सिटी 1000 एकड़ में, ऑफ कोर्स हैप्पी टू हेल्प, बट ये बहुत ज़रूरी है चीज़।
थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग. मेरे को बोला गया था कि 50-60 लोग होंगे. ये 50-60 थोड़े ज़्यादा है. ठीक है. 50-60 सिटीज़ की बात हो रही थी, मैं गलत समझ गया. बट मैं एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ. एंड आज मैं कहानी सुनाऊंगा अराउंड विजन. ठीक है. और ये कहानी एक्चुअली बेस्ड है यहीं हैदराबाद में. एंड जो कहानी है ये है चंद्रबाबू नायडू. एवरीबडी रिमेंबर्स? ओके. चंद्रबाबू नायडू एंड धीरूभाई अंबानी. एवरीबडी रिमेंबर्स धीरूभाई अंबानी? So Dhirubhai Ambani was called to Hyderabad by Chandrababu Naidu and said कि यार यहाँ पे मेरे को एक ऑरेंज जूस का प्लांट लगाना है. किसका? ऑरेंज जूस का प्लांट लगाना है. तो धीरूभाई अंबानी बोला ठीक है मैं सोचता हूँ. तो चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि सोचने की क्या बात है, मैं आपको 1000-10,000 एकड़ ऑर्चर्ड का लैंड देता हूँ, आप वहाँ पे ऑरेंज ट्रीज लगाइए, आप उसके साथ एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए और फिर आप एक कोल्ड चेन नेटवर्क आपके पास ऑलरेडी है ही, उसके तहत आप पूरे भारत में अपना ऑरेंज जूस और इवन भारत के बाहर ऑरेंज जूस भेजिए. साउंड्स ओके राइट? राइट. सो व्हाट डिड धीरूभाई अंबानी से? ही सेड सर ये तो ठीक है बट मेरे माइंड में कुछ और बात थी. मेरे माइंड में बात ये थी कि मैं आपसे 10,000 नहीं, मैं आपसे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, एटलीस्ट 1 लाख एकड़ का एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ मैं आपसे. उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी मार्शी लैंड है, मार्शी समझते हैं ना, कीचड़ वाली लैंड है, उसको मैं रिक्लेम करूंगा, वहां पे मैं ऑरेंज ट्रीज लगाऊंगा और वहां पे मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाऊंगा. पर उस प्रोसेसिंग प्लांट से मैं 20 पाइपलाइन बिछाऊंगा. 20 पाइपलाइन बिछाऊंगा जो 20 डिफरेंट स्टेट्स में जाएगी इंडिया के, और वो पाइपलाइन करते करते लोगों के घर तक भेजूंगा ताकि टैप से लोग अपने घर में टैप खोल के ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, जो भी जूस चाहिए वो निकाल सकें. ये था धीरूभाई अंबानी जी का विजन. राइट नाउ अब ये कहानी है, ये रियल थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं ये कहानी सुनता हूं, जब भी मैं ये कहानी रिपीट करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार बंदा इस लेवल पे भी सोच सकता है. राइट. इस लेवल पे भी एक विजन किसी का हो सकता है. राइट. कहां एक सिंपल ऑरेंज जूस का एक प्लांट लगाने की बात हो रही थी, कहां एक पूरी पाइपलाइन बिछाने की बात हो गई. नॉट जस्ट फॉर ऑरेंज जूस बट हर तरीके का जूस लोगों के घर में टैप में आएगा. राइट. क्या सोच है. राइट. दिस वॉज अ टर्निंग मोमेंट इन माई लाइफ व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी. एंड उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली कि प्रथम, जब कोई बंदा अपने विलेज से समुद्र में जाता है पानी लेने के लिए, क्या लेने के लिए? पानी लेने के लिए, तो या तो वो एक लोटा लेके जा सकता है. ठीक है. वो घंटा जाएगा, सूरज में जाएगा, गर्मी होगी, हवा होगी, ओले पड़ेंगे, घंटा लगेगा उसको समुद्र तक पहुंचने में. लोटा लिया उसने और लोटे में वो कितना पानी भरेगा? लोटे भर का. और फिर वो वापस लेकर आएगा अपने घर पे. ठीक है. आप ये कर सकते हो. पर आप एक बड़ा टैंक लेके भी जा सकते थे समुद्र में. यदि आप एक बड़ा टैंक लेके जाते तब भी 1 ही घंटा लगता, तब भी वही सूरज रहता, तब भी वही ओले पड़ते. पर इस बार आप वापस क्या लेकर आते? टैंक भर पानी. राइट. तो यदि काम करना ही है, 24 घंटे जागना ही है, इतना हार्डवर्क करना ही है, सैटरडे संडे छोड़ना ही है, तो लोटा क्यों पकड़ के लेके जाएं? व्हाई नॉट टैंक? राइट. एंड आई थिंक चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा. चल नहीं रहा. तो यार ये जो चीज थी ना, इससे मेरा आंखें बहुत खुली. एंड उसके बाद से, इससे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था यूएस में, और मैं लोटेवल का काम कर रहा था. राइट. एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, हम लोग 28 लोग थे, हमारे कुछ कस्टमर्स थे. बट जब मैंने कहानी सुनी धीरूभाई अंबानी की, जब मैंने ये लोटे वाली कहानी सुनी, तो मुझे लगा यार अब तो मेरी लाइफ के साथ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. मैं टैंक लेके नहीं जा रहा, मैं लोटा लेके घूम रहा हूँ. राइट. लेट मी कम देयर. तो इसलिए अच्छा, अब यहाँ पे अब चेंज करते हैं थोड़ी सी स्टोरी. अब थोड़ी कॉलेज की बात करते हैं. यहाँ पे कौन कौन कॉलेज ग्रेजुएट कर चुका है? एवरीबडी? ओके. हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस लाइक? गए नहीं? राइट. कोई नहीं गया. मैं भी नहीं गया था. मैं आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट टू गो टू एन आईवी लीग कॉलेज. वॉर्टन स्कूल सुना होगा सबने नाम. राइट. सो आई वॉज वेरी लकी, मेरा वॉर्टन में एडमिशन हो गया.
एंड वॉटन में मैं आपको दिल की बात बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी एक भी क्लास ढंग से नहीं लगाई, राइट? मैं एग्जाम देने में अच्छा था तो एक दिन पहले पढ़ लेता था और एक दिन बाद एग्जाम दे देता था। एग्जाम में मेरे आ जाते थे 80-90% और एग्जाम के अगले दिन सब भूल जाता था, राइट? आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट विद मी ऑन दिस। बीकॉम, बीटेक, जो मर्जी हो, हम सब भूल चुके हैं हमने क्या सीखा था, और जो भी सीखा भी था वो कभी लाइफ में यूज किया? बिल्कुल नहीं, राइट? साइन थीटा, कॉस थीटा, भूल, अब वो भी नहीं याद मुझे क्या था। यार ये कहानी है नॉट जस्ट आपकी और मेरी, ये दुनिया में हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की कहानी है। और मैं तो आईवी लीग वॉर्डन स्कूल की बात कर रहा हूँ। जो टीचर पढ़ाता था कभी कभी उसका एक्सेंट समझ नहीं आता था, जब समझ आता था तो बोलते थे यार ये क्यों पढ़ा रहा है, मतलब ये कॉस थीटा टाइम देगा करना क्या मैंने, और जब कुछ दिमाग में पड़ती भी थी बात तो उसको लाइफ में कभी यूज किया नहीं, राइट? तो वो 4 साल पार्टी करके गुजारे हैं सबने, हम सबने, राइट? और ये कहानी थी जो मुझे काफी चुभती थी कि यार हम अपने 4 साल, हमने लाइफ के 4 साल बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं इन कॉलेज। एवरीबडी एग्रीज विद मी? एंड इसके लिए एक बेटर सोल्यूशन होना चाहिए, राइट? और ये मुझे लगा यार ये है टैंक भर का प्रॉब्लम। मुझे लगा यार यदि ये हम सॉल्व कर पाए तो क्या हो जाए, राइट? तो 5 साल पहले मैं इंडिया वापस आया कोविड के टाइम पे, और हमने एक छोटा सा कॉलेज खोला 60 लोगों के साथ। बट एक चीज हमने डिफरेंटली करी, हमने नो एग्जाम्स, नो लेक्चर्स, नो स्लाइड्स, नो ग्रेड्स, नो अटेंडेंस, नो बुक्स, नन ऑफ दैट, नो कैंपस ऑल्सो, नो प्रोफेसर ऑल्सो। वी जस्ट पुट 60 पीपल, 60 स्टूडेंट्स इन वन रूम, और हमने बोला कि यार ये 60 बच्चे पढ़कर नहीं कर कर सीखेंगे। यदि आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप किताब से तो नहीं सीख सकते स्विमिंग, कैसे सीखोगे? पानी में जाके। वैसे ही धंधा भी आप ऐसे ही सीखते हो। आई थिंक देयर आर सम सीनियर मेंबर्स हियर, धंधा तो आप कर कर ही सीख सकते हो, पढ़कर तो नहीं सीख सकते। तो फिर हमने एक ऐसा कॉलेज बनाया जहाँ पे बच्चे हर सेमेस्टर में एग्जाम नहीं लेते बट एक छोटा सा बिजनेस बनाते हैं, और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो उनके रेवेन्यू से आते हैं। जो उनके मार्क्स हैं, जो उनकी ग्रेड शीट है, वो उनके रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट, एनपीएस, रोएस, जो ये सारे मैट्रिक्स हैं इनसे आती हैं, राइट? आज के दिन वो यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली एंड सबसे यंगेस्ट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। थैंक यू। बिना किसी प्रोफेसर और बिना क्लासरूम के, राइट? वी हैव नो एग्जाम्स, नो लेक्चर्स, नो स्लाइड्स, नो ग्रेड्स, नो अटेंडेंस, नो बुक्स, राइट? एंड इस साल हमारे स्टूडेंट्स, 12 बच्चे हमारे, 12 स्टूडेंट्स have reached Shark Tank India, right? Single most for auditions 3 आ चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी 9 मुझे लगता है कि होपफुली sooner or later आ जाएंगे, right? So imagine one small differentiation that we created in college has had such a huge ripple effect, right? और ये करके मेरे को genuinely feeling आई कि अब मैं टैंक लेके गया हूँ, right? ये एक बड़ा विजन है। इंडिया से एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी ना तो दुनिया के टॉप 10 में है, टॉप 20 में भी नहीं है, टॉप 30 में भी नहीं है, टॉप 50 में भी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। अभी शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप 200 में आया है, राइट? इतने बिहाइंड हैं हम। तो फिर हमने ये सोचा कि यार यदि टैंक पकड़ ही लिया है, सो माइट एज वेल ट्राई टू रैंक मास्टर्स यूनियन एज अ ग्लोबल टॉप 10 बिजनेस स्कूल और टॉप 10 यूनिवर्सिटी। आज के दिन टॉप 10 मानी जाती है हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, येल, स्टर्न, स्लोन, इंसियाड, एलबीएस, ये सब नाम सुने सबने, राइट? इसमें इंडिया का एक भी नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हर साल जो हमारे जेई रैंकर होते हैं, जो टॉप 100 जेई रैंकर होते हैं, जब वो अपनी आईआईटी खत्म कर लेते हैं उसमें से 93 बाहर चले जाते हैं अपनी एमबीए करने या मास्टर्स करने या जॉब करने के लिए। वो इंडिया में इसलिए नहीं रहते क्योंकि मास्टर्स करने के लिए टॉप 10 रैंक यूनिवर्सिटी है ही नहीं इंडिया में, राइट? दैट इज द इशू दैट दे आर फेसिंग। एंड कभी इंडिया में किसी ने टॉप 10 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काम ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, राइट? सो इसलिए हमने सोचा है मास्टर्स यूनियन को दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ काम शुरू करते हैं, राइट? सो ये विजन के साथ हम लोग चले थे। हाउ डू यू गाइस फील? इज दिस विजन लार्ज इनफ? ओके, आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। चाइना के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, चाइना अच्छा है बुरा है, चलिए कीपिंग दैट असाइड। चाइना में एक शहर है नानजिंग करके, सुना है ना? जैसे बेजिंग है नॉर्थ में, नानजिंग है साउथ में। बे मतलब नॉर्थ, नान मतलब साउथ, राइट? सो नानजिंग करके एक शहर है, मैं वहां पे गया था जी लास्ट मंथ, ठीक है जी।
चाइना में हमें पता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी आगे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी आगे हैं। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट खत्म। यू नो व्हाई? You know why? Yes, they have started working on electric vertical takeoff landing taxis. They are working on air taxis now. नानजिंग में मैंने एक टाइम पे 1200 टैक्सीज चलती हुई देखी। 1200 टैक्सीज। वहां पे वीडियो लेना अलाउड नहीं है। वो चाहते नहीं कि पूरी दुनिया देखे अभी कि क्या हो रहा है। अच्छा, जब उन्होंने ये एयर टैक्सीज लॉन्च करी और जो आज के दिन यूज हो रही हैं, मेरे को आप ये बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? ईवी, उबर? नो, नॉट ऑटोमोटिव, नॉट एविएशन। सबसे बड़ा फर्क पड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, क्योंकि जो लैंड के प्राइसेस होते हैं वो सड़क के बेसिस पे होते हैं। अब सड़क ही नहीं रह गई, राइट? द रियल एस्टेट प्राइसेस इन नानजिंग went down and that's why they stopped the photography, ताकि और शहरों में भी रियल एस्टेट के प्राइसेस ना फॉल करें इतने ड्रास्टिकली, राइट? तो चाइना इज नॉट टॉकिंग अबाउट बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, राइट? सो दे डोंट नीड एनी रनवे, दे कैन जस्ट गो अप एंड कम डाउन, राइट? दुबई में भी शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, बट नानजिंग में तो इसकी पूरी की पूरी फैक्ट्री है। देयर आर 34 कंपनीज, 34 large companies that are manufacturing electric aircraft in China, right? That is the vision that they are working on. अच्छा, एक और कहानी। Does everybody know what CRISPR is? किसी ने सुना ना चीज का? CRISPR, CRISPR. Has anyone heard? Okay. Everybody knows allopathy, homeopathy, Ayurveda. Okay, what is the biggest problem with allopathy or any of these medicines? Side effects? What else? Works only on symptoms, right? यदि आपको बुखार है तो आपका बुखार कम कर देगी, बुखार ठीक नहीं कर सकती, राइट? जो अंदर वायरस है, अंदर बैक्टीरिया, उसको ठीक नहीं कर सकती, राइट? अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है एंड दिस इज अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉल्ड CRISPR, CRISPR, राइट? अब इसमें यू कैन एक्चुअली इंजेक्ट योर सेल्फ एंड दिस इज एन अवेलेबल टेक्नोलॉजी, यू कैन इंजेक्ट योर सेल्फ विद सम सीरम एंड आप रियल टाइम में अपना DNA चेंज कर सकते हो। आप आज मतलब फुली ग्रोन अडल्ट 35 साल का बंदा अपना आईज का कलर चेंज कर सकता है, अपनी हाइट इंक्रीज कर सकता है, अपने बाल वापस ला सकता है, यस, फॉर एवरीबॉडी, राइट? तो रादर देन फिक्सिंग द सिम्टम्स, वी हैव द टेक्नोलॉजी टुडे, we have the technology today to change the DNA structure of our bodies, right? इस पे इंडिया में गेस करो कितनी लैब्स काम कर रही हैं? How many labs in India are working on CRISPR? 0. How many labs are working in China on CRISPR? I don't even know, but much more than India. And in the US there are around 30 labs that are working, right? इंडिया में CRISPR पे कोई काम नहीं कर रहा है और हम अपने आप को फार्मेसी में सबसे आगे कहते हैं, राइट? दिस इज अ टेक्नोलॉजी नोबडी इज वर्किंग ऑन इन इंडिया. इट इज सेट टू रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग, set to revolutionize everything that we can create superhumans, we can create biological weapons, right? All of these things are possible with CRISPR. We are not talking about it. If we really want to talk about large vision and the tank that we want to go with, we should start thinking about electric takeoff, we should start thinking about CRISPR. अच्छा, Elon Musk की क्या क्या कंपनीज हैं? SpaceX, Tesla, बोरिंग कंपनी, X और Neuralink. Neuralink किसने बोला? Neuralink, exactly. How many of you know about Neuralink? 1, 2, 3, 4, very few, 10%. Neuralink is a technology that in 1 year, mark my words, in 1 year is going to change all of our lives. अभी मैं 2 हफ्ते पहले बोलता 5 साल लगेंगे. अभी उन्होंने Elon Musk ने एक प्रेजेंटेशन दिया लास्ट वीक जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूरोलिंक में क्या क्या टेक्नोलॉजी आगे आ गई है. इट इज अ चिप दैट यू इंस्टॉल इन योर ब्रेन सर्जिकली. दे एक्चुअली इंस्टॉल अ चिप इन योर ब्रेन एंड वंस दैट चिप इज इंस्टॉल्ड यू कैन कंट्रोल एनी कंप्यूटर just by thinking. Right now you have to type, right?
on keyboard or you have to tap on your phone. With this, you can just think and use your phone. You can just think and drive your car. You can just think and communicate with somebody, right? This is not science fiction anymore. This technology is there, right? This technology is there. It is about to take over. Again, how many companies are working in India on this? 0. Can we work on this? Yes, very much so. The technology is fully open source. ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने बंद करके रखी है टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है. My recommendation to all the young people here, मैंने आपको 3 नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है जो अगले 1 साल से 5 साल में दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने वाली हैं और इंडिया में इसमें 0 कंपटीशन है आज के दिन. इलेक्ट्रिक वर्टिकल एंड टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट, CRISPR जीन थेरेपी, and the third one, Neuralink, right? So this is the level of thinking that all of us are capable of. Sir, जो आए थे अभी एपेक्स बॉडी के हेड जो, उन्होंने कहा कि हमारा यूथ जब आ गया करने पे तो कुछ भी कर सकता है. I fully agree. I fully agree. But अपने को ये नई टेक्नोलॉजीज पकड़नी पड़ेंगी, right? टाइम हो गया पुरानी तरीके की कंपनीज का. अब ये नई टेक्नोलॉजीज को प्लीज पकड़ें और इनको आगे लेके चलें, तभी हम इंडिया को 2 स्टेप आगे रख पाएंगे, राइट? वर्ल्ड कप जीतना बहुत अच्छी बात है, ऑनेस्टली. एशिया कप जीतना बहुत अच्छी बात है, राइट? बट हमें अपना कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज. ऐसी बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूं, बट these 3 you guys found interesting? Okay, so I want one promise from everybody here. ये जो 3 टेक्नोलॉजीज की मैंने बात करी, आई वांट अ रेज ऑफ हैंड्स कि कौन आज जाके इन पे एक्चुअली रिसर्च करेगा, राइट? नो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट. इस पे थोड़ा कम इंटरेस्ट है, हाँ? सम कंपनीज हैव स्टार्टेड. CRISPR पे जीन थेरेपी, CRISPR जीन थेरेपी. ओके, एंड फाइनली इन Neuralink. अच्छा, lot of people have still not raised their hands. So I'm not able to convince them, I guess. Thank you. 4th time, maybe there is something else. But I really hope that we will increase the level of our competition and get to that level of work as well. मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कैंपस गुड़गांव में है, and हमने कैंपस में इन तीनों चीज़ों के लिए एक लैब क्रिएट करी है. It's in the early stages, right? हमने गवर्नमेंट से ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन भी भरी है, कंपनीज के साथ भी काम करेंगे, हमारे पास आके बनाए. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज विजिट मी इन गुड़गांव. वी वुड लव टू वर्क टुगेदर एंड ट्राई एंड बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया. थैंक यू सो मच. I think for the next 5-10 minutes, would love to engage, would love to answer any questions that anybody has. The best part which I loved about is that you do business by role-based education than book-based education. Right. So in this, I'll be more than happy to work with you on pharmacy side. Great. Where we have an experience of 20-30 years. So please let me know in case where we can do anything. We have done some paperless warehousing systems. We have built robotic integrations with conveyor belts and other things. So if the new generation pharmacy business or FMCG retail business, if anyone wants to do. Done, sir. Thank you so much. Thank you. I'll add one more thing. I had a professor in Wharton जिनकी क्लास में मैं actually सुनता था. उनका नाम था एडम ग्रांट, राइट? तो क्लास के पहले दिन उन्होंने हमें एक कलरिंग बुकलेट दी. कलरिंग बुकलेट जो बच्चे करते हैं, राइट? और उन्होंने बोला हम सबको कि इस कलरिंग बुकलेट में कुछ चित्र बने हुए हैं, तो आपको कल इनको पेंट करके लेकर आने हैं, राइट? तो पूरी रात हम लोग सारे बैठे, हमने बोले यार ये हम लोग MBA करने आए हैं, $2.5 लाख पे करा है हमने यहाँ पे, ये हमसे पेंटिंग क्यों करा रहा है? कुछ तो इसमें गड़बड़ होगी चीज़ में. तो हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान से लाइन के बाहर ना पेंट करते हुए अच्छी सी पेंटिंग बनाई. कई लोगों ने शेडिंग करी, कई लोगों ने स्केचिंग करी, कई लोगों ने कुछ किया, एंड वी ऑल सबमिटेड आवर बुक्स द नेक्स्ट डे. ठीक है? तो एडम ग्रांट ने वो सारी किताबें देखी, सारी कलरिंग बुक्स देखी, और सारी की सारी कलरिंग बुक्स एक एक करके हमारे सामने ऐसे करके फाड़ दी, राइट? वी हैड वर्क वेरी हार्ड, बट सारी की सारी उन्होंने फाड़ दी, राइट?
And guess why? He explained to us later. He said, guys, you are studying in the best university in the world. You're the most well-read people, the most well-connected people. And जब मैंने तुम्हें बोला कि यार इस चित्र में पेंट करके लेकर आओ, तो तुम सब ने जो पेंटिंग करी है वो करी है in between the lines. तुम लोग कहीं ना कहीं जो दुनिया ने तुम्हारे पे एक बंदिशें लगाई हुई हैं उसके अंदर रह के तुमने पेंटिंग करी है. किसी भी स्टूडेंट ने अपनी खुद की पेंटिंग नहीं बनाई, राइट? सबने अपने लाइंस के अंदर पेंट किया. नोबडी पेंटेड आउटसाइड द लाइंस. ही सेड तुम इस स्टेज पे हो अभी लाइफ के, दुनिया के, जहां पे जो तुम पेंटिंग बनाओगे दुनिया उसके अराउंड खुद लाइंस बना लेगी. तुम्हें लाइंस के अंदर पेंट करने की जरूरत नहीं है, दुनिया तुम्हारे अराउंड लाइंस बनाएगी. कोई भी रूल, कोई भी नॉर्म, कोई भी सोसाइटी का प्रेशर, ये हम जैसे लोगों ने ही पिछले 100, 200, 300 साल में बनाया है. इट डजंट मीन कि यही रूल है, इट डजंट मीन कि ऐसे ही दुनिया चलती है. एक जैसे K-12 सिस्टम है कि किंडरगार्टन से शुरू होगा, 12वीं तक जाएगा. 12वीं के बाद 4 साल का अंडरग्रेड होगा, 4 साल के बाद 2 साल की MBA होगी, 2 साल की MBA के बाद 5 साल का PhD होगा. ये किसने बनाया है? ये हम लोगों ने ही बनाया है, राइट? और ये ठीक है, ये सही है, ये राइट है. शायद 100 साल पहले था, आज नहीं है. एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री में ये बंदिशें हैं जो लगी हुई हैं. वी हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ देम, एंड दैट्स व्हेन ट्रू इनोवेशन कैन हैपन. No, all done, sir. We are just finishing. I just want to add, Pratham, on this specific topic of role-based. In our pharmacy businesses, what happens is when people want to adopt computerization, it takes 3 months, 4 months, 5 months to train someone. Okay, that I'm talking about the support executive. Pharmacy guy knows what to do business, but this guy. So what we did is we did a change in our business. We created a virtual pharmacy and created role-based. What it used to take 5 months now takes 3 days. So I think one of the best method of everything. And second thing which I want to just emphasize on the CRISPR part, there's a company in Bangalore which works. So there was a belief that because of genes we are all different. And it was found that only 12,000 genes are there. Then they found what else is the reason why there is a difference between two human beings. And they found that it is because of bacteria. And there are some bacteria in our gut bacteria and all so much. So there is one bacteria which if it is not there, how much ever you do exercise is no use. So I'm saying that there is a business model in every small bacteria level now. Absolutely. And I think if we can get into that, if we can create a curiosity on CRISPR and other things, it's an amazing futuristic business models, which is very, very different from our traditional 1 kilo sona kharida aur becha. It is very, very different. And I think it's in, people are working on now, people have started creating artificial corneas, okay, artificial liver, okay. So there are everything like, this is, I think one, if you can put an interest, I think it's an amazing thing. I will also be coming there. Thank you so much, sir. Thank you. All right, thank you everybody. So please give a huge round of applause to Pratham Mittal.